નમસ્કાર, હું પ્રવીણ. 2024ની લોકસભા ચૂંટણી પહેલાના અમુક મહિનાઓમાં જેમ્સ બોન્ડ કરતા વધારે પ્રખ્યાત ભારતમાં હોય તો એ હતા ઇલેક્ટોરલ બોન્ડ, જેના કારણે તાગરધીનના છે રાજકીય પક્ષોને. કોઈ રાજકીય પક્ષ બાકાત નથી. જે રાજકીય પક્ષ જનતાની સેવા કરવા માટે સત્તામાં આવે છે અથવા વિપક્ષમાં રહે છે, એ રાજકીય પક્ષને આર્થિક ટેકો કરવા માટે લખલૂટ ફંડ અપાય છે. તેનાથી તો રાજકીય પક્ષો ચાલે છે. સેન્ટ્રલ એસી ની ચેમ્બરો તો ઠીક, કાર્યાલય પણ બને છે. અને એડીઆર એક એવી સંસ્થા જે દરેક રાજકીય પક્ષ, દરેક રાજકીય ઉમેદવાર આ તમામના એફિડેવિટથી માનીને જે કંઈ પણ પબ્લિક ડોમેનમાં, હવે તો બટ ઓબ્વિયસ સુપ્રીમ કોર્ટના આદેશ પછી એ જાહેર કરવું પડ્યું કે કયા વ્યક્તિએ, કયા કોર્પોરેટે કઈ પાર્ટીને કેટલું ફંડ આપ્યું છે. કેમ કે આની પણ એક લાંબી લડાઈ ચાલી અને ઘણી બધી કોન્ટ્રોવર્સી પણ થઈ. આ વર્ષે 5 રાજ્યોમાં ચૂંટણી છે. એડી ચોટીનું જોર તમામ લગાવી રહ્યા છે. અને રાજકીય પક્ષો જેમ ખાલી પેટે ભજન ન થાય, ભક્તિ ન થાય, ઘણા કિસ્સામાં થતી હશે, એવા અપવાદ છે. પરંતુ રાજકીય પક્ષોને પણ ખર્ચો જોઈએ ને. જેમ મોટી મોટી સભા ગજવવી હોય, સભામાં બસની વ્યવસ્થા કરવી હોય, ફૂડ પેકેટ્સની વ્યવસ્થા કરવી હોય, ઝંડાની વ્યવસ્થા કરવી હોય, ખુરશી સોફાની વ્યવસ્થા કરવી હોય, રેડ કાર્પેટવાળા સ્ટેજ અને સુગંધિત ગુલાબથી માંડીને બધા જ ફૂલોની વ્યવસ્થા કરવી હોય, તો તમે વિચાર કરો કે આ બધા પૈસા આવે છે ક્યાંથી? જેની પાસે બચત છે, અંતરાત્મા જાગી જાય તો કદાચ દાન કરી દે. પરંતુ એડીઆર સંસ્થા છે અને આ સંસ્થા થકી લોકોને સીધી સરળ ભાષામાં એ માહિતી પ્રાપ્ત થાય છે કે રાજકીય પક્ષોને કેટલું ફંડ મળે છે, રાજકીય ઉમેદવારોને કેટલું ફંડ મળે છે. તો એડીઆરનું વધુ એક વિશ્લેષણ આવ્યું છે એફિડેવિટના આધારે. કેમ કે 2025નું વર્ષ પૂર્ણ થયું અને 2026નું વર્ષ શરૂ થયું, તો 2024-25માં રાષ્ટ્રીય સ્તરે ટોટલ રાજકીય પક્ષોને કેટલું ફંડ મળ્યું, ગુજરાત ક્યાં છે, ગુજરાતમાં ભાજપ, કોંગ્રેસ, આમ આદમી પાર્ટીને કેટલું ફંડ મળ્યું છે, કોને ફંડ આપ્યું છે, ટોપ 10 લિસ્ટમાં કોણ છે, તમને એ પણ અંદાજો આવી જાય કે સૌથી વધારે દાનવીર કોણ છે. ભલે હોર્મુઝની ખાડી 5% ખુલે, 10% ખુલે કે 1000% ખુલે, પણ રાજકીય પક્ષોના દાનવીર અડીખમ છે. ત્યાં મંદી નથી. તેનું કારણ એ છે કે 2024-25માં રાષ્ટ્રીય પક્ષોને 6648.56 કરોડનું દાન મળ્યું. ટુ બી પ્રિસાઇઝ 6.5 કરોડ દરેક રાજકીય પક્ષ આવી ગયા. અને એક સિરસ તો રહેવો છે કે જે સત્તામાં હોય એને દાનની મલાઈ વધુ મળે. અને કદાચ એ એડીઆરના વિશ્લેષણમાં ઉડીને આંખે વળગે એવું છે. કેમ કે 3 રાજ્યો એવા છે જે ટોપ 3 લિસ્ટમાં છે જ્યાં સૌથી વધુ દાન મળે છે. પહેલા નંબર પર દિલ્હી છે, 2639.48 કરોડ તમામ રાજકીય પક્ષો આવી ગયા. મહારાષ્ટ્ર છે બીજા નંબરે, જ્યાં સૌથી વધારે ખેડૂતો આત્મહત્યા કરે છે. ત્યાંથી 2429.86 કરોડનું દાન મળ્યું. અને ત્રીજા નંબર પર છે આપણું ગુજરાત, 309.18 કરોડ. ગુજરાત આમ દિલ્હી અને મહારાષ્ટ્ર કરતાં ઘણું પાછળ છે, પણ બાકી રાજ્યો કરતાં ઘણું આગળ છે. હવે ગુજરાતમાં થોડા ઊંડા ઉતરીએ. ગુજરાતના 3 મુખ્ય પક્ષો કયા? પહેલા ભાજપ, કોંગ્રેસ હતી, હવે આમ આદમી પાર્ટી આવી. છેલ્લા 2-3 વર્ષથી ચર્ચા વધુ છે. તો ગુજરાતમાં જે ટોટલ ફંડ મળ્યું છે 309.18 કરોડ, તેમાં 99.99% ફંડ મળ્યું છે સત્તાધારી ભાજપને, 308.29 કરોડ. કોંગ્રેસને મળ્યું છે 69,60,000. અને આમ આદમી પાર્ટી, જે આજકાલ સભાઓ ગજવી રહી છે અને ભારે ભીડ છે, તેને મળ્યું છે 10 લાખ. માત્ર 10 લાખ આખા વર્ષમાં. ખર્ચા ક્યાંથી આવે છે પાર્ટી જાણે. હવે આ ફંડ કોણ આપે છે? તમને પણ એક પ્રશ્ન થતો હશે કે આ ફંડનો, આ દાનવીરોનો આટલો બધો ધોધ વહે છે ક્યાંથી? તો ગુજરાતમાં જે ટોટલ 309.18 કરોડ દાન મળ્યું છે, તેમાં કોર્પોરેટ જગતના દાનવીરો અડીખમ છે. 250.44 કરોડ એટલે કે 81% કુલ દાનના કોર્પોરેટ જગતે ટેકો કર્યો. બીજા નંબર પર વ્યક્તિગત દાન છે 57.55 કરોડ, 19% વ્યક્તિગત દાન,
બાકી મોટા ભાગે કોર્પોરેટથી દરેક રાજકીય પક્ષો ચાલે છે. એડીઆરના વિશ્લેષણ પરથી તારણ સ્પષ્ટ થઈ જાય છે. આ ગુજરાતના ટોચના 10 કરદાતાઓ કયા છે? સૌથી વધારે દાનવીર 2024-25માં રાજકીય પક્ષોનો છે સફલ ગોયલ રિયલ્ટી LHP, જેને 45 કરોડ દાન આપ્યું છે. બીજા નંબર પર હાર્દિક અગ્રવાલ છે, 20 કરોડ દાન, 2 કટકે 2 હપ્તે 10-10 કરોડ. ત્રીજા નંબરે દિનેશ અગ્રવાલ 20 કરોડ, 10-10 કરોડના 2 હપ્તા. શ્રી કેદાર એગ્રો ન્યુટ્રેટ LLP, આ બધા જ અમુક નામો તમે પહેલી વાર સાંભળશો, પણ આવક મોટી લાગે છે, દાન મોટું છે. નિર્મા લિમિટેડ 13 કરોડ, સૌરાષ્ટ્ર સિમેન્ટ 10 કરોડ, ફ્રેન્ડ્સ ઇમ્પેક્ટ એની એકથી વધુ એન્ટ્રીઓ છે, ટોટલ 10 કરોડ દાન છે. એગ્રોસેલ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ, હિમગીરી કોર્પોરેશન અને આરતી ઇન્ડસ્ટ્રીઝ લિમિટેડ. તો આ 10 ટોપ 10 દાનવીરો છે જે અડીખમ છે. સરકારે આમ તો એક્સાઇઝ ડ્યુટી ઘટાડી છે, ઘટાડવી પડે એવી સ્થિતિ છે. બાકી પેટ્રોલ ડીઝલના ભાવ વધી જાય, જે રીતે કોરોનામાં 15 વખત એક્સાઇઝ ડ્યુટી વધારી, એ રીતે ઘટાડી. તો હવે આ જે દાન છે જેના પર પોલિટિકલ પાર્ટી નિર્ભર છે, આ સિરિયસ તો પહેલેથી ચાલ્યું આવે છે. આ દાનની પેટર્નમાં શું ફરક આવ્યો છે અને ગુજરાત ત્રીજા નંબર પર છે અથવા અન્ય રાજ્યો છે, પેટર્ન શું રહેશે? અથવા શું આ સિરિયસ તો લોકશાહીમાં જળવાતો રહેશે કે જે સત્તામાં છે એને સૌથી વધારે દાનની મલાઈ મળશે અને બાકી નેશનલ પાર્ટીઝ જે છે એને દાન મળી રહ્યું છે? તો આપણી સાથે ચર્ચા કરવા માટે ખાસ મહેમાન આપણી સાથે જોડાશે, એડીઆરમાંથી જોડાશે. शैली महाजन છે, જે प्रोग्राम एंड रिसर्च मैनेजर છે एडीआर. शैली जी, आपका स्वागत है. नमस्ते, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे आपके शो पे बुलाने के लिए. शैली जी, पहले तो हम शुक्रगुजार है कि एडीआर जैसी संस्थाओं के माध्यम से जनता तक वो आंकड़े पहुंचते हैं और उनको समझ पड़े, वो हिसाब से आंकड़े पहुंचते हैं कि सही में ये पूरा खेल क्या होता है. मतलब पॉलिटिकल पार्टीज को जो फंडिंग मिलती है, इलेक्ट्रल बॉन्ड का मैंने इसलिए याद दिलवाया क्योंकि 2024 में एडीआर खुद एक संस्था थी जो कोर्ट में गई थी. बाद में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के ऊपर वो डिक्लेयर करना पड़ा कि किसको कितना दान दिया है. तो ये 24-25 का जो आंकड़ा है, तो मतलब ये एवरेज है 6,000-7,000 करोड़ के आसपास, या फिर जो इलेक्शन के ईयर्स होते हैं या नज़दीक ऊपर नीचे होता है तो उसमें बढ़ जाता है? किस तरह से आप मतलब ये पूरा विश्लेषण करते हैं? तो जिस हम रिपोर्ट की अभी आज चर्चा कर रहे हैं, जो एडीआर ने अभी हाल ही में रिलीज की है, ये रिपोर्ट उस डोनेशन से रिलेटेड है जो हर साल पार्टीज को मिलती है. तो क्योंकि लॉ ये एग्जिस्ट करता है कि जो भी दान 20,000 से अधिक के हैं, उनकी जितनी भी डिटेल है वो पार्टियों को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को डिक्लेयर करनी है. तो ये एक फाइनेंशियल ईयर में कितना चंदा पार्टियों को मिला है, ये उसका एनालिसिस हमने किया है. इसमें ये डोनेशन उन्होंने इलेक्शन एक्सपेंडिचर के लिए इस्तेमाल करी या एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस के लिए, ये सब उसमें इंक्लूडेड है. तो हम इस रिपोर्ट में जो हम देखते हैं, और आपने इस शो के इंट्रोडक्शन में भी जो बताया कि हर साल हम ये देखते हैं कि पार्टीज को जो भी चंदा मिल रहा है वो बढ़ता जा रहा है. 2024 में क्योंकि जनरल इलेक्शंस थे, तब हर साल अगर पार्लियामेंट्री इलेक्शन है जिस साल, तो डोनेशन बहुत ज्यादा आएगा. लेकिन क्योंकि इस साल 5 स्टेट्स में भी इलेक्शन है, तो उससे पहले के फाइनेंशियल ईयर का भी अगर हम एनालिसिस देखें, जो 24-25 की हमारी रिपोर्ट है, तो कंपैरिजन में देखा जा रहा है कि 161% की बढ़ोतरी हुई है नेशनल पार्टीज को जो चंदा मिला है. उसमें जो सबसे जरूरी बात है वो ये है कि जो रूलिंग पार्टी है उनको सबसे ज्यादा जो है डोनेशन मिली है, और बाकी जो नेशनल पार्टीज है उनकी कंपैरिजन में उनको 10% से भी ज्यादा, अगर हम बाकी पार्टीज को जितनी डोनेशन मिली है उसको इकट्ठा करें, और तो जो बीजेपी है, जो रूलिंग पार्टी है, उनको 10% से भी ज्यादा हर पार्टी से जो है डोनेशन मिली है. तो पिछले साल की कंपैरिजन में तो चंदा बढ़ा है, लेकिन हर पार्टी के डोनेशन में बढ़ोतरी भी हुई है. लेकिन अगर आप देखेंगे तो एक पार्टी को सबसे ज्यादा डोनेशंस मिल रही है, और जो गैप है नेशनल पार्टीज के बीच में, जहां तक उनका जो एक्सेस है टू डोनेशंस एक्सीडिंग ₹20,000, वो बढ़ते जा रहा है हर साल. तो इसमें अगर मैं आपको थोड़े से अगर कुछ फिगर्स बताऊं, जैसे बीजेपी को 6074.015 करोड़ का डोनेशन मिला है, लेकिन अगर आप उसके बाद नेक्स्ट जो पार्टी देखेंगे, जो कांग्रेस पार्टी है, उनका जो डोनेशन का फिगर है वो यहाँ से 6,000 करोड़ से सीधा आ जाता है 517 करोड़ के करीब. उसके बाद जो तीसरी नेशनल पार्टी है जिसको हम देखते हैं वो है आम आदमी पार्टी, और उनका गिरकर चंदा का जो फिगर हो जाती है वो 38 करोड़ के आसपास है.
तो बहुत क्लियर हम इस रिपोर्ट से देख सकते हैं कि जो लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए इलेक्शंस में, कि पार्टीज को ये एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग है कि हाँ जी, जो पार्टी पावर में है उसको ज्यादा चंदा मिलता ही है, लेकिन जिस तरीके से हर साल गैप बढ़ते जा रहा है वो एक कंसर्न की बात है कि एक ही पार्टी को सबसे ज्यादा डोनेशन मिल रही है और जो डोनेशन का सोर्स है वो भी कॉन्सेंट्रेटेड है कि कुछ चंद ऐसे दानदाता हैं जिनसे ये इलेक्शन का जो है डोनेशन आता है। एक हिंदी में बहुत बड़ी कहावत है, सब लोगों ने सुनी होगी, जिसकी लाठी उसकी भैंस। यही दलील थी शायद कि जो रूलिंग पार्टी अब तक, मतलब रूलिंग में कोई भी रहा हो, अब तक चंदा सबसे ज्यादा वहीं पे रहा हो, तो जो सेम लेविंग प्लेइंग फील्ड की बात है, तो हर एक इलेक्शंस में, सेंटर के इलेक्शंस में या फिर राज्यों के चुनाव में जो बात होती है, तो मतलब उसमें कुछ बदलाव होता दिख रहा है, या फिर मतलब जुडिशरी भी मतलब अब तक जो कह चुकी है, मान चुके हैं, सब लोगों को भी पता चल चुका है। आप जो विश्लेषण रखते हैं तो आपको वो पता चल जाता है, जमीन आसमान का फर्क है। तो इससे जो पूरा हमारा स्ट्रक्चर है, एक तो ये बात नहीं है कि मतलब चंदा नहीं देना चाहिए पॉलिटिकल पार्टीज को, लेकिन जो डिफरेंस आ रहा है, रूलिंग पार्टी का जो चंदा लेने का एवरेज है और जो मिल रहा है, सामने सेम लेवल प्लेइंग फील्ड है ही नहीं। और रूलिंग पार्टी को चंदा देने वाले मैक्सिमम कॉरपोरेट लोग हैं, 10 जो गुजरात के ये विश्लेषण में बाहर आए, डिक्लेयर करना पड़ा। तो ये मतलब आने वाले वक्त में भी अगर ये चीज रही तो ये क्या फासला बढ़ता ही जाएगा? हाँ जी, ये आपने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया। आपने जैसे इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में बात की थी, जब इलेक्टोरल बॉन्ड्स थे तो जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी वो ये थी कि वो अनोनिमस है, हमें ये नहीं पता चल रहा था कि पार्टियों को दान कहाँ से मिल रहा है। लेकिन आज इलेक्टोरल बॉन्ड्स नहीं एग्जिस्ट करते, लेकिन हम फिर भी ये देख रहे हैं कि हर साल जो है डोनेशंस बढ़ रही हैं। इसमें जो एक सबसे बड़ा अभी लीगल लूप होल है, या हम कह सकते हैं क्लैरिटी नहीं है, वो ये है कि जब इलेक्टोरल बॉन्ड से पहले जो पॉलिटिकल फंडिंग की जो रूल्स या गाइडलाइंस थे वो ये कहती थी कि कॉर्पोरेट डोनेशन पे एक 7.5% की लिमिट थी। आज जब इलेक्टोरल बॉन्ड्स नहीं है तो क्या हम ये समझे कि हम प्री इलेक्टोरल बॉन्ड्स वाले पॉलिटिकल फाइनेंस रेगुलेटरी सिस्टम में ऑपरेट कर रहे हैं? और अगर हम कर रहे हैं तो क्या किसी भी तरीके से इलेक्शन कमीशन या जो भी अथॉरिटीज हैं, क्या हम ये चेक कर पा रहे हैं कि जो आज कॉर्पोरेट से जो दान पार्टियों को मिल रहे हैं, क्या वो ये 7.5% की लिमिट को फॉलो कर रही है? क्योंकि ये लिमिट सिर्फ इलेक्टोरल बॉन्ड्स के इंट्रोडक्शन के समय हट गई थी, लेकिन अब क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड्स ही नहीं है तो हमें ये भी सोचना पड़ेगा कि अगर अभी अनलिमिटेड कॉर्पोरेट फंडिंग हो रही है, या वो जो एक कैप थी कॉर्पोरेट फंडिंग की इंडिया की जो फाइनेंशियल रेगुलेटरी सिस्टम में, वो होना बहुत जरूरी है, क्योंकि उससे एक तो लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए वो बहुत जरूरी है। अगर कॉर्पोरेट्स की डोनेशन पे लिमिट लगाई जाए, उससे ये होगा कि कहीं ना कहीं जो गैप है जो पार्टियों के बीच में जो एक बढ़ता जा रहा है, वो हम कहीं ना कहीं उसको लिमिट कर पाएंगे। दूसरी जो बहुत ज्यादा जरूरी चीज है कि हर इलेक्शंस में भी अगर आप देखेंगे तो इलेक्शन एक्सपेंडिचर भी बढ़ते जा रहे हैं, कोई लिमिट नहीं है। इंडिया के जो इलेक्शंस है, हमारे जो लोकसभा इलेक्शंस है, वो वर्ल्ड के सबसे एक्सपेंसिव इलेक्शंस है, सबसे ज्यादा हमारे इलेक्शंस पे खर्चा होता है। तो कुछ हद तक हमें ये सोचना पड़ेगा कि जो हमारा रेगुलेटरी सिस्टम है वो किस तरीके से उसको रिफॉर्म की जरूरत है। और दूसरी बात, अभी जो हम बात कर रहे हैं वो तो ये ऑफिशियल डिक्लेरेशन है, ये वो है जो पार्टी खुद डिक्लेयर करती है और इलेक्शन कमीशन को देती है। लेकिन इसके बाहर भी बहुत सारा आप कह सकते हैं कि पार्टीज की इनकम है, डोनेशन है, जो शायद जो ऑफिशियल रिपोर्टिंग है उसके बीच उसमें नहीं है इंक्लूडेड। तो जो ब्लैक मनी और जो ब्लैक इकोनॉमी जो ऑपरेट करती है, हमें उसका तो फिर भी कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है। तो ये बहुत सही बात है कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जाने से हम ये कह सकते हैं कि ऐसा नहीं है कि सिस्टम फिक्स हो गया है। आज जो पहले कॉर्पोरेट से इलेक्टोरल बॉन्ड्स के थ्रू पैसा दे सकते हैं, वो अब इलेक्टोरल ट्रस्ट के थ्रू आता है। अगर आप हमारी रिपोर्ट देखेंगे तो उसमें जो इलेक्टोरल ट्रस्ट है, कुछ ही चंद ऐसे इलेक्टोरल ट्रस्ट है जो सबसे ज्यादा डोनेशंस पार्टीज को देते हैं। 2013 में जब इलेक्टोरल ट्रस्ट को लाया गया था तो जो एक इंटेंशन थी वो ये थी कि ट्रांसपेरेंसी बढ़ाई जाए। इलेक्टोरल ट्रस्ट से अगर पार्टीज को चंदा मिलेगा तो एक मिडिल फैसिलिटेटर होगा इलेक्टोरल ट्रस्ट के फॉर्म में, जिससे ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी। लेकिन आज हम ये देखते हैं कि इलेक्टोरल ट्रस्ट में भी जैसे प्रूडेंट इलेक्टोरल ट्रस्ट है, जिसमें काफी सारी बड़ी बड़ी कंपनीज के नाम आते हैं, भारती एयरटेल है, या आपकी और कंपनीज है, जुबलेंट कंपनी करके है। इन सारी कंपनीज और बाकी ट्रस्ट के कंपैरिजन में काफी सेवरल टाइम्स ज्यादा प्रूडेंट इलेक्टोरल ट्रस्ट से पैसा आ रहा है। तो सिर्फ ऐसा नहीं कि एक ही पार्टी को सबसे ज्यादा डोनेशन मिल रही है, लेकिन जो सोर्स ऑफ डोनेशन है वो भी कुछ ग्रुप ऑफ कंपनीज हैं जो सबसे ज्यादा पार्टीज को दे रही है। तो वो भी एक बहुत ही चिंताजनक बात है कि हमें ये भी देखना पड़ेगा कि क्या अब इलेक्टोरल बॉन्ड्स की एब्सेंस में
क्या किसी भी तरीके का रिफॉर्म इलेक्टोरल ट्रस्ट में भी रिक्वायर्ड है, क्योंकि वहाँ ट्रांसपेरेंसी तो है, हमें ये तो पता है कि कौन सी कंपनी इलेक्टोरल ट्रस्ट को पैसा दे रही, लेकिन हमें एग्जैक्टली ये नहीं पता कि ट्रस्ट के माध्यम से एग्जैक्टली कौन सी कंपनी किस पार्टी को चंदा दे रही, वो इन्फॉर्मेशन इलेक्टोरल ट्रस्ट की स्कीम में भी अवेलेबल, मतलब जनता को अवेलेबल नहीं है, वो इलेक्शन कमीशन या फिर सीबीडीटी जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस है उनके पास अवेलेबल है। क्योंकि विपक्ष के द्वारा वो जो सेम लेवल प्लेइंग फील्ड की बात कर रहे हैं, तो विपक्ष का सीधा ये आरोप था उस वक्त कि आपने चंदा लिया, बाद में फेवर की, मतलब कि धंधा दिया, यही शब्द थे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि भले ही सरकार कहे कि महंगाई हमारे कंट्रोल में है, फिनेंस मिनिस्टर आके कहे या फिर सरकार कहे, लेकिन आपने बहुत अच्छी बात की कि महंगे होते जा रहे इलेक्शंस। इलेक्शन लड़ना आसान बात नहीं है। यहाँ तो जो सामान्य जनता है उसके लिए वो पैसे बचाना बहुत बड़ी दिक्कत है, किल्लत वाली बात हो गई। तो सवाल एक आसान सा ये उठता है कि इलेक्ट्रोल बॉन्ड जो एक्सपोज हो गया उसके बाद बदला क्या? ये तो वही फ्लो आ रहा है। तो ये कुछ आप मानते हो कि कुछ बदला है सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद, या फिर वही सिरस्ता आगे ही चलता जा रहा है? आई थिंक दो इसमें बहुत जरूरी चीजें जो हमें समझनी चाहिए। पहली चीज तो ये, इलेक्टोरल बॉन्ड्स कंप्लीटली अनोनिमस थे। पहली बार हमारे देश में ऐसा कोई मैकेनिज्म इंट्रोड्यूस किया गया था कि जो इससे पार्टी को डोनेशन जो देगा उसकी हमें बिल्कुल भी जानकारी नहीं होगी। नहीं। और वर्ल्ड में भी अगर आप देखेंगे कोई भी डेमोक्रेटिक कंट्री में ऐसा कोई पॉलिटिकल फंडिंग का मैकेनिज्म नहीं जो कंप्लीटली अनोनिमस हो। तो अगर आज हम इस बात में सफल हुए हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स की जो स्कीम है उसको हम स्क्रैप करा पाए हैं, तो ये सबसे बड़ी बात है कि सिटीजन्स राइट टू इन्फॉर्मेशन जो है हमने उसके थ्रू वो चीज, कोर्ट ने भी ये चीज जो है रीअफर्म करी है कि सिटीजन्स का एक राइट है जानने का कि पार्टियों को चंदा कहाँ से मिलता है। अगर आपको याद होगा जब इलेक्टोरल बॉन्ड्स की प्रोसीडिंग भी चल रही थी कोर्ट में, तो गवर्नमेंट ने ये एक आर्ग्यूमेंट देने की कोशिश की थी कि आम जनता को इससे क्या मतलब है कि पार्टी को पैसा कहाँ से मिले, ये गवर्नमेंट का आर्ग्यूमेंट था। तो आज इलेक्टोरल बॉन्ड्स की जजमेंट से एक चीज बहुत साफ हो गई है कि जनता को बिल्कुल उनका हक है ये जानने का, बहुत जरूरी है कि जिन पार्टियों को वो वोट डालने के लिए इलेक्ट करते हैं उनको बिल्कुल राइट है वो जाने कि उनको कहाँ से चंदा मिल रहा है, और जो इलेक्शन कैंपेनिंग वो कर रहे हैं वो किसके पैसे से कर रहे हैं। तो पहली तो हमारी जीत इस चीज में हुई कि हम राइट टू इन्फॉर्मेशन को, किसी सिटीजन इन्फॉर्मेशन को प्रोटेक्ट कर पाए। दूसरी जरूरी चीज इसमें यह है कि हो सकता है हमारा सिस्टम अभी परफेक्ट नहीं है, लेकिन जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है, एटलीस्ट जो ऑफिशियल डिक्लेरेशन है उसमें हमें ये तो पता चल रहा है कि कौन सी कंपनी डोनेट कर रही है। अभी जब आपने शो के स्टार्टिंग में कुछ 10 टॉप 10 कंपनी जो गुजरात बेस्ड उनका बताया, अगर इलेक्टोरल बॉन्ड्स होते तो हमें नहीं पता होता, क्योंकि तब हर बड़ी कंपनी जो बड़ा अमाउंट का डोनेशन देना चाहती थी वो इलेक्टोरल बॉन्ड ही प्रेफर करती थी। लेकिन आज दो ही रूट्स है उनके पास, या तो वो आउटसाइड दी ऑफिशियल रिपोर्टिंग दे, जो एक ब्लैक इकोनॉमी जो फंक्शन करती है, जो बहुत बड़ी है, जिसको एकदम इस इशू को सॉल्व करना आसान नहीं है। लेकिन दूसरा तरीका है इलेक्टोरल ट्रस्ट। हमने ये भी देखा इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जाने के बाद अब काफी ज्यादा डोनेशन इलेक्टोरल ट्रस्ट से भी फ्लो करने लगी। तो एटलीस्ट उसमें एक इट इज अ पार्शियली ट्रांसपेरेंट सिस्टम। वहां पे एटलीस्ट ये है कि आपको पता है कंपनीज कौन सी है जो ट्रस्ट को दे रही है, और ये जानकारी कि उस कंपनी से किस पार्टी को ट्रस्ट के थ्रू पैसा मिल रहा है, वो जानकारी एटलीस्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एंड सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के पास है। तो जो एक चीज बदली वो है कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत पारदर्शिता लाभ पाए हैं। लेकिन जब तक हम पॉलिटिकल पार्टीज की इलेक्शन एक्सपेंडिचर पे लिमिट नहीं लगाएंगे, तब तक आप ये देखिए कि ना तो चंदे की कोई लिमिट रहेगी, क्योंकि पार्टीज को अगर ये राइट है वो कितना भी पैसा खर्च करे इलेक्शंस पे, तो उनको ज्यादा से ज्यादा डोनेशन भी चाहिए। लेकिन अगर कहीं हम ये लिमिट लगा सकते हैं कि पार्टीज इतना, क्योंकि आज कैंडिडेट के एक्सपेंडिचर पे तो लिमिट है, लेकिन जो सबसे बड़ा एक लीगल जो लूपहोल एग्जिस्ट करता है वो है कि पार्टी के खर्चे पे कोई लिमिट नहीं है। उस वजह से भी हम ये देख रहे हैं कि हर साल एंड विद एवरी इलेक्शन जो है इलेक्शंस और ज्यादा एक्सपेंसिव होते जा रहे हैं। एंड वो एक कंसर्निंग चीज है। लेकिन वहां पे एडिया ने भी बहुत बार ये बोला है कि, और हमारा कोर्ट में जो है पिटिशन भी है कि इलेक्शन एक्सपेंडिचर पे पार्टीज के एक लिमिट होनी चाहिए। अच्छी बात बोली, क्योंकि हम अगर लोकतंत्र की बात करते हैं, मतलब स्वस्थ लोकतंत्र के, जहां पर कोई भी आके फाइट कर सकता है, लड़ सकता है, अगर उसके पास मनी और मसल पावर है नहीं तो भूल जाना चाहिए कि हम इस डेमोक्रेसी में इस लायक ही कि हम लड़ सके, जो यही चीज रही। धन्यवाद शैली जी विस्तृत से जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए, और आगे भी हमें इंतजार रहेगा ऐसे डेटा का, केम के जरूर से કે રાજકીય પક્ષો જે સેવા કરવા આવે છે લખલૂટ ફંડ વાપરે છે, ક્યાં કોણ ફંડ આપે છે, ટોપ 10 લિસ્ટ તો આવી ગયું, અને કદાચ ઇલેક્ટોરલ બોર્ડમાં સુપ્રીમ કોર્ટે આદેશ
ન કર્યું હોત તો ટોપ 10 લિસ્ટ પણ દર્શકો અને મીડિયા સુધી ન પહોંચ્યું હોત, કેમ કે આમાં ઘણી બધી મલ્ટિપલ એન્ટ્રીઝ પણ છે અને મોટા ભાગનું ફંડ કોર્પોરેટ આપી રહ્યું છે. મતલબ કે કોર્પોરેટથી રાજકીય પક્ષોને તાગડધીન ના છે. સિરિયસ તો એવો છે કે સત્તા પક્ષમાં જે બેસે છે તેને સૌથી વધારે ફંડની મલાઈ મળે છે. આંકડા ફરીથી તારવે છે. 6,500 કરોડથી ઉપરનું ફંડ પણ મોટા ભાગે સત્તા પક્ષને. તો એક વાત બહુ ક્લિયર થઈ, મોંઘવારી કંટ્રોલમાં હોય કે ન હોય, તમારી બચત ઘટી હોય કે ના હોય, રૂપિયો ડોલર સામે 94-95 એ ઝોલા ખાતો હોય કે ન હોય, પરંતુ રાજકીય પક્ષોના કરદાતા જેમ્સ બોન્ડની જેમ અડીખમ છે. એક બ્રેક માટે રોકાઈશું. બ્રેક બાદ અન્ય સમાચાર.